اچھا، اب امام شافعی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اتنا جو لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ علم کوئی نہیں ہوتا، اس کی بیس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ سارے امام ایک دوسرے کے کوئی شاگرد تھا تو کوئی کسی کا استاد تھا۔ تو اسی طرح سے جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی شاگرد ہوتا ہے، پھر شاگرد اس لیول پہ آ جاتا ہے، وہ پھر پڑھانا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کی فالوئنگ زیادہ ہو جاتی ہے بیکاز اس کا میں بھی طریقہ فرق ہوتا ہے، علم ساروں کے پاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام شافعی کے استاد کون تھے اور ان کے شاگرد کون تھے۔ ٹھیک ہے جی، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کا نام جو تھا امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ 150 ہجری میں ملک شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ غزہ سے تو آج کل سارے ہی واقف ہیں نا۔ تو 150 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 2 سال کی عمر میں مکہ ان کو لے آیا گیا تھا۔ ان کی مدر جو تھی نا، کیونکہ یہ 2 سال کی عمر میں جب ان کو لے کے آئی تھی تو یہ امام صاحب یتیم تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب ابھی ان کی پیدائش سے پہلے، بعض کتابوں میں ہے کہ پیدا ہوتے ہی، بعض میں ہے کہ پیدائش سے پہلے ان کے فادر کا انتقال ہو گیا، تو ان کی مدر جو تھی وہ ان کو مکہ میں واپس لے آئی تھی۔ ان کی والدہ کا بیان ہے کہ جس زمانے میں شافعی جو تھے وہ ان کے شکن مادر میں تھے، مطلب پیٹ میں ہی تھی، ابھی پریگننٹ تھی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مشتری سیارہ میرے جسم سے نکلا ہے اور مصر میں گرا ہے اور اس کی روشنی ہر شہر میں پہنچی ہے۔ اور پھر بتایا گیا، جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ان کو بتایا گیا کہ ان کے بطن سے ایک عالم دین پیدا ہوگا جس کا علم جو ہے وہ مصر سے تمام شہروں میں عام ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب امام صاحب جو ہے، ان کی تعلیم کے بارے میں نے تھوڑا سا بالکل لکھا ہے، اور بہت ان کی وسیع علم کا تھا اس کے اندر۔ امام صاحب نے مکہ میں تعلیم کی ابتدا کی اور اس کے بعد وہ مدینہ میں علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ امام صاحب نے اپنی طالب علمی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا کہ کیونکہ میں یتیم تھا اور والدہ میری کفالت کر رہی تھی، میرے پاس معلم کی خدمات کے لیے رقم نہیں تھی۔ اچھا، یہ خاص طور پہ میں اپنے تمام ٹیچرز کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں، ان کو اتنی موٹیویشن ملے گی اس سے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پیڈ اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اپنی کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹ کی بھی فی پے کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم صدقہ جاریہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی فی بھی نہیں پے ہوتی ہے لیکن وہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ ان کو میں شاباش اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون ہمارے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اب دیکھیں، امام شافعی جو تھے یہ فی نہیں پے کر سکتے تھے، لیکن ان کے استاد نے جیسے ان کو پڑھایا تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے استاد کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس معلم کی خدمات کے لیے رقم نہیں تھی، مگر ایسی صورت پیدا ہوئی کہ معلم جو تھے انہوں نے اجرت کے بغیر پڑھانے پر وہ راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہوا کیا تھا کہ وہ بچوں کو جو سبق دیتے تھے میں زبانی یاد کر لیتا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اب یہ چھوٹے سے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میری اس بات پر معلم بہت خوش ہوا اور وہ مجھے مفت تعلیم دینے پر راضی ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں علماء کی مجلس درس میں حدیث اور مسائل سن کر ان کو یاد کر لیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کاغذ خرید سکیں۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ اس لیے ادھر ادھر سے ہڈیاں، ٹھیکرے اور کھجور کے پتے، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں نا، پتے چن کر ان پر لکھ لیا کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح سے یاد کر لیا تھا کہ اس کے تمام معانی اور مطالب جو تھے مجھ پر عیاں ہو گئے تھے 7 سال کی عمر میں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ 9 راتوں میں نے امام مالک کی کتاب موطا جو ہے اس کو یاد کر لیا تھا۔ حدیث میں سب سے اتھینٹک، بہت زبردست ہے، آپ ضرور پڑھیے گا یہ والی، جن کو بھی حدیث کا شوق ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ امام مالک کی موطا جو کتاب تھی انہوں نے 7 ڈیز میں حفظ کر لی تھی۔ امیر مکہ سے، اچھا اب کیونکہ یہ مکہ میں تھے، اب اس کے بعد ان کو یہ شوق تھا کہ میں مدینہ میں جاؤں اور میں امام مالک، کیونکہ موطا سے بھی ان کو بڑی محبت تھی، تو میں امام مالک سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں امیر مکہ سے خط
इमाम मालिक और दूसरा ख़त अमीर मदीना जो कि गवर्नर था मदीना का, उसके नाम लेकर मदीना पहुंचा। अब कहते हैं कि हैबत का आप देखिएगा इमाम मालिक की कैसी हैबत थी, उस ज़माने में उलमा की क्या इज़्ज़त थी। कहते हैं अमीर मदीना को अमीर मक्का का ख़त देकर कहा कि आप ये दूसरा जो ख़त है ना, ये आप किसी के हाथ इमाम मालिक को पहुंचा दें और मेरे बारे में सिफारिश कर दें। अब वह उधर पढ़ना चाह रहे थे, तो कहते हैं कि गवर्नर जो थे अमीर मदीना ने कहा कि अच्छा ये हो कि मैं खुद ही आपके साथ उनकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि उनको भी शौक था उनसे मिलने का। तो कहते हैं और ना सिर्फ हाजिर हूँ बल्कि उनके दरवाजे पर इतनी देर बैठूं कि वादी अकीक का गर्दो गुबार हम पर पड़े, मतलब वादी अकीक जहाँ पे वो रहते थे उस शहर में। तो उन्होंने कहा कि उधर का गर्दो गुबार भी उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि क्योंकि वो आलिम दीन थे तो वो मुझ पर पड़ जाए, फिर अंदर जाने की उसके बाद हमें इजाज़त मिले। अच्छा, इमाम शाफी फरमाते हैं कि उसके बाद हम दोनों निकले, वादी अकीक पहुँचे जहाँ इमाम साहब का घर था। इजाज़त चाही तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की लौंडी ने कहा कि अगर कोई सवाल है तो लिख के दे दो। इमाम साहब कहते हैं कि वो जवाब दे देंगे। अच्छा, कहते हैं कि अमीर मदीना ने कहा कि एक ज़रूरत के सिलसिले में आया हूँ। अमीर मक्का ने, मक्का का जो गवर्नर है, उसने एक ख़त आपके नाम दिया है। बांदी ये सुनकर अंदर चली गई और कुछ ही देर के बाद इमाम मालिक जो है ना वो खुद बाहर तशरीफ़ लेके आए। अच्छा, अब जैसे वो बाहर आते हैं तो अमीर मक्का ने ख़त पढ़ना, उनको ख़त दिया। अमीर मदीना जो थे उन्होंने नहीं सॉरी हाँ अमीर मदीना ने ख़त दिया, तो उन्होंने अमीर मक्का का ख़त जब पढ़ना शुरू किया तो जब वो इस पर आए ना, सिफारिश की इबारत पर आए, तो कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह का इल्म वसीलों और सिफारिशों से हासिल किया जाएगा क्या? अच्छा, जैसे उन्होंने ये कहा ना तो जो इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अमीर मदीना जो है ना वो डर गए और वो घबराने लग गए। मतलब वो उनसे उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जो इमाम मालिक है उन्हें कुछ कह सके। आप ये ज़रा सोचें। कहते जैसे मैंने उनको देखा कि वो घबरा गए तो मैंने ही बात करनी शुरू कर दी। उनको तो ये लालच था ना कि ये ना हो कि मतलब मेरा वो चांस ही ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो जब इन्होंने अपना नाम बताया मोहम्मद, तो कहते हैं कि इमाम साहब ने कहा कि मोहम्मद, अल्लाह का खौफ करो और गुनाहों से बचो, क्योंकि आइंदा तुम बहुत बाहसियत होने वाले हो। और फिर मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि अच्छा, फिर कल आ जाना और अपने साथ किसी ऐसे आदमी को ले आना जो तुम्हारे लिए मौता पढ़े, क्योंकि उनको पढ़ के सुनानी थी और उन्होंने करेक्शन करनी थी और आगे उनको बताना था। कहते मैंने कहा कि मैं खुद ही इसकी करात करूँगा, क्योंकि उन्होंने तो हिफ्ज़ किया हुआ था ना, लेकिन अभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं खुद ही करात कर लूँगा। कहते हैं कि मैं मौता ज़ुबानी पढ़ता था, लेकिन मैं हाथ में किताब, उनके डर से हाथ में किताब होती थी लेकिन मैं ज़ुबानी पढ़ रहा होता था। इस तरह कहते हैं कि मैंने चंद दिनों में मौता पढ़ ली और इमाम साहब की वफ़ात तक मैं मदीना में ही रहा। अब ये इमाम मालिक उनके उस्ताद थे, ठीक है। इमाम मालिक की जो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई ये फिर मदीना में रहे। उसके बाद ये वापस मक्का लौट आए और वापस जब ये मक्का आते हैं तो उनकी इल्मी और दीनी शोहरत इतनी आम हो चुकी थी कि इसके बाद कहते हैं कि उन लोगों ने उनसे बहुत इल्म से फ़ायदा उठाना शुरू किया और कुछ ही देर के बाद फिर ये बगदाद की तरफ रवाना हुए। अच्छा, अब इमाम साहब के क़याम बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल आप देखें बड़े अदब और एहतराम के साथ इनसे तहसीले इल्म कर रहे थे, मतलब इनके स्टूडेंट बन गए थे। इमाम अहमद बिन हम्बल स्टूडेंट थे, इमाम मालिक उनके उस्ताद थे, खुद इमाम शाफी हैं, राइट। देखें ज़रा। अब कहते हैं कि एक दिन याहिया बिन मुईन ने इमाम अहमद के साहिबजादे साले से कहा कि आपके वालिद को ज़ेब नहीं देता कि मैंने उन्हें देखा है कि इमाम शाफी सवारी पर है और वो उनके साथ पैदल चल रहे हैं। अच्छा, उनके बेटे ने जब आके अपने बाप से कहा कि मुझे उन्होंने ये कहा था, तो इमाम साहब ने कहा कि उनसे, इमाम मतलब अहमद बिन हम्बल ने कहा कि उनसे कह दो कि अगर आप फ़कीह बनना चाहते हैं तो शाफी की सवारी की दूसरी रकाब आप पकड़ लें। अच्छा, इमाम शाफी बगदाद में पहली मरतबा 195 हिजरी में आए थे। 2 साल वहाँ रहकर फिर मक्का वापस चले गए। इसके बाद दोबारा दूसरी मरतबा 198 में गए और चंद माह वहाँ क़याम किया
और 199 हिजरी में मिस्र तशरीफ़ ले गए और वफ़ात तक वो वहीं रहे। इमाम साहब का इल्म 3 मरकज़ी शहर में आम हुआ, मक्का में, बगदाद में और मिस्र में। इनमें इनकी मजलिस दर्स कायम हुई। इमाम शाफी नहायत ज़हीन और साहिब फरासत और फ़हम वाले आदमी थे। अबू अबैदा का बयान है कि मैंने शाफी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा अक्लमंद कोई शख्स नहीं देखा और अपनी टनोर में मतलब अपनी ज़िंदगी के दौर में मैंने उनसे ज़्यादा कामिल और मुकम्मल इंसान नहीं देखा। हारून बिन सईद कहते हैं कि अगर शाफी रहमतुल्लाह अलैह पत्थर के इस सतून, सामने उनके कोई सतून था, उन्होंने कहा अगर ये बताना शुरू करें कि ये वाला सतून जो है ये पत्थर का नहीं, ये लकड़ी का है, ये साबित, तो वो उनके दलाइल इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो ये साबित कर देंगे कि ये लकड़ी का है, हालांकि वो पत्थर का है। इतने वो उनके दलाइल मजबूत होते थे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कॉल है कि अगर शाफी रहमतुल्लाह अलैह ना होते तो मैं कुछ भी ना जानता। उन्होंने मुझे क्या सिखाया, मुझे फसीह ज़ुबान, वो बड़े फसीह ज़ुबान और सही अक्ल और खैर के मालिक थे। यूनुस बिन अब्दुल आला का कॉल है कि अगर तमाम लोगों की अक्ल शाफी रहमतुल्लाह अलैह में जम कर दी जाए, मतलब मिला दी जाए, तो लोगों की अक्ल का पता भी ना चले। जो उनकी बातों को समझ ले वो इंतहाई समझदार है। वो लोगों से बातचीत उनकी अक्ल के मुताबिक करते थे। हुसैन कहते हैं कि मैंने इमाम साहब के साथ कई रातें गुजारी। वो तहाई रात तक नवाफिल अदा करते, 50 से 100 तक आयात पढ़ते। हर आयत के बाद वो मुसलमानों के लिए दुआ करते थे और अजाब की आयत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से पनाह मांगते थे। अच्छा, अब इनकी वफ़ात जो थी, इमाम शाफी 150 हिजरी में पैदा हुए और 203 हिजरी में जुम्मा के दिन मिस्र के शहर मिस्र में फौत हुए थे। रबिया बिन सुलेमान का बयान है कि तदफीन से जब वो वापस आ रहे थे तो उस वक़्त शबान की पहली का चांद उन्होंने देखा था। रबिया बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने उसी रात, जिस रात में मैं इमाम साहब को दफना के आया था, मैंने रात को ख्वाब में देखा और कि इमाम साहब को मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है। इमाम साहब ने बताया कि अल्लाह पाक ने मुझे नूर की कुर्सी पर बिठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही कुर्सी है जो हम और आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नूर के मेंबरों पे बिठा देना। इमाम साहब की ज़िंदगी का हाल देखें और हमारी ज़िंदगियों का हाल देखें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से अच्छा गुमान तो करना चाहिए ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें भी नूर की मेंबरों पे बैठा देंगे। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह थे। इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे वक्त मिलता जाए मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे हालात ज़िंदगी बताती रहूँ ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा और वसअत पैदा हो और हम ऐसे फ़िरका होने से बच जाए। आमीन सुम आमीन। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा चैनल इस्लाम विद आयशा को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।